President Rugby India, to open his thoughts on the significance of the Sub-Junior National Championships. Over to you, sir. Thank you. मैं अंग्रेजी में बात करूं या हिंदी में? हिंदी में दोनों। डॉक्टर विजय जी, ईश्वरी, प्रियदर्शी जी, अशोक पांडा जी, पहले तो रग्बी इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, और साथ में इससे 100 गुना शुक्रिया कि आपने इस सब जूनियर नेशनल्स का होस्टिंग आपने यहाँ पे रखने का डिसीजन लिया है। रग्बी और उड़ीसा के जो जड़ हैं वो बहुत मजबूत और सबसे पुराने जड़। ये जड़ करीबन 15-20 साल पुराने जड़ हैं, और पिछले 7 साल 45 मेडल्स Mike, don't hold the mic. Which mic should I hold? 7 साल में 45 प्लेयर्स उड़ीसा से have represented India at the international level. और पिछले 5 साल से 29 मेडल्स नेशनल लेवल पे उड़ीसा को मिले हैं। जो उड़ीसा का प्रभाव है इंडियन रग्बी में वो बहुत बहुमूल्य प्रभाव है। हम जानते हैं उड़ीसा इंफ्रास्ट्रक्चरली हाई परफॉर्मेंस, स्पोर्टिंग एक्सीलेंस और इवेंट्स, स्पोर्ट में Odisha was one of the prime examples to follow in this country, and rugby is exactly the same beneficiary of this thinking. मिसाल के तौर पे 2023 में एशियन गेम्स में इंडियन विमेन्स रग्बी टीम का जो रिप्रेजेंटेशन था एशियन गेम्स में, उस टीम में 30% of the players were from Odisha. The captain of the Indian women's national team at the Asian Games was from Odisha, from Keonjhar district. अब रही बात सब जूनियर नेशनल्स के बारे में, ये इतने इम्पोर्टेंट, इतने अहम क्यों हैं? रग्बी का जो खेल है वो पहले अंडर 14 सब जूनियर्स हुआ करता था, और उसमें हम फिजिकल टैकल नहीं सिखाते थे। वो रूल पिछले साल से वर्ल्ड रग्बी के स्तर पे बदला है। अभी अलाउड है जो हम कहते हैं कि सेमी फिजिकल, पूरा जैसे एडल्ट रग्बी में नहीं है, बट देयर इज स्टिल फिजिकल कॉन्टैक्ट which is below a certain height in the body. ये contact होता है अब सब juniors में, because it has been recognized that under 15 को अगर physical contact के आदी नहीं होते हैं, then they will have trouble when they have to play under 18s. तो सब juniors में ये जो change पिछले साल से हुआ है, और यहाँ पे अब रग्बी सब juniors हम इसलिए अहम इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि 2026 में अगर एक एथलीट 15 साल का हो या 14 साल का हो, by the time the Commonwealth game comes up they'll be 19, and by the time the next cycle of the Asian Games comes up they'll be in their peak at 23. किसी भी ऐसे फिजिकल स्पोर्ट में 14-15 साल की उम्र पे अगर आप किसी को उत्साहित नहीं करते हो
to develop the talent, you will not get that kind of physical talent in 5 or 6 years from now. This holds true for all team sports, most for rugby because it requires such physical ability. To have the sub-junior nationals here with 24 states from across the country participating, it is a logistical, it's not a challenge for Odisha state, but certainly logistically, it's a big tournament. Each team will have 12 to 14 players. So you will have about 750 players here for the boys and girls from across the country. I would like to thank Dr. Vijay, I would like to thank the Department of Sport, I would like to thank the Honorable Sports Minister as well as the Honorable Chief Minister for this, क्योंकि हमारे लिए ये एज ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है. उसके बाद अंडर 18 तक वहाँ पे तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे. So we have to catch them at this age group, and with the, I've just been seeing the facilities, चाहे hotels हो, चाहे ground हो, चाहे बाकी facilities हो, they are top class. For a rugby player, the most important thing is the ground, most important. And the ground that I was walking on today and I was seeing today is just a wonderful, wonderful ground. So thank you for that. It's one of the best grounds that I have seen in the last year. So I know that our boys and girls will really enjoy playing on that ground. Baki khana pina wo to in any case always has been top class. But I'm so happy to see the facilities in the stadium, and I'm looking forward. I myself will be here when the tournament happens. I'm looking forward to having listening to the players how they feel at the end of this tournament. Priyadarshi ji is here from ORFA, Odisha Rugby Football Association. We've been friends now for 4 or 5 years, and we've been working together. We owe a lot to Odisha State, to the government, and to you, Priyadarshi ji. Thank you for your support, and thank you for always being there for us. And personally, I would like to thank you for being such a good friend of rugby and friend of Rugby India. I hope to see all of you at the stadium. हमने अंग्रेजी में we have said that Odisha is the beating heart of rugby, and I think in Odia, and you can correct me, it is rugby Odisha ra spandana. Thank you. Thank you so much, sir. Association to address the press. କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା. ଆଜି ଯେଉଁ 7 ରଗ୍ବି ପାଇଁ ଆମର ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ଆମର ଆଇଏଫ୍ୟୁର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରଗ୍ବି ଫେଡେରେସନ୍ ୟୁନିୟନ୍ର ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲ ବୋଷ ମହୋଦୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ରଗ୍ବିର ଗୋଟେ IPL ମୁମ୍ବାଇରେ କରିଥିଲେ. ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ହେଇଥିଲା. ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ମୁମ୍ବାଇର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଇଥିଲା. ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ. ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଇଦୁଲା ବିଜୟ ଜୀ, ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଜୀ, ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଜୀ, ଅନ୍ୟତମ ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍ପୋର୍ଟସର. ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରଗ୍ବି ଖେଳୁଛୁ. ବିଭିନ୍ନ ମୁମ୍ବାଇ କୋଲକାତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି. ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସେମାନେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରଗ୍ବିକି କ୍ୟାରିୟର କରିପାରୁଛନ୍ତି. ଦେ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସ୍ପେଶାଲି ରଗ୍ବି ଏ କ୍ୟାରିୟର. ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ରଗ୍ବିର ଯେଭଳି ଭାବରେ
ट्रेनिंग दिया जाउची जो भाई खेलुचंती जो भाई फिट रहउचंती एवं सबठो बड़ कथा फिट इंडिया मूवमेंट रही हमर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कर सेथरे सब स्पोर्ट्स पर्सन को फिट रखिया पे बहुत कार्यक्रम करा जाउची एवं आप खेल हम देखिए 16 तारिख रु 21 पर्यंत अच्छी राहुल जी ही हिमसेल्फ इज ए वेरी टैलेंटेड रग्बी प्लेयर से पिला सहित शर्ट्स पिंधिक रुहंती खेलती सकाळु संध्या पर्यंत से फील्ड रे रुहंती कौन सी नो अदर प्रेसिडेंट हैव एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ रग्बी remaining so much of time spending so much of labor and interest for the rugby players. Really we are very proud and privileged to get Rahul ji as our president in the rugby India. So we are very happy for that. ओडिशा रे जो हब निश्चित भाव में आम समस्त प्रकार सुविधा जोगे दिया जाव जहाँ राहुल जी कहले दी फील्ड इज वेरी एक्सीलेंट में गतकाली आमर क्रीड़ा मंत्री सूरज सूर्यवंशी जी भी थिले हमें उत्कल यूनिवर्सिटी युवा दिवस रे डायरेक्टर महोदय थिले ऑनरेबल सीएम थिले हमें मिनिस्टर समस्त थिलु संध्या बेले भी ओल्ड टाउन रे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन रे मिनिस्टर सहित थिलु तो कहूले चेष्टा करते आसिए बोली आस पारे एंटायर टीम अच्छी हमें राज्य सरकार विशेषकर आम प्रिय मुख्यमंत्री सुत मोहन चरण माझी जी एवं सूर्यवंशी सूरज जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स समस्त को धन्यवाद दूचु आशा करुचु बहुत सुंदर भाव में खेल हम क्लाइमेट इज रियली वेरी गुड एवं आशा करुचु आपण मान सहयोग रही समस्ते आपको प्रसारित करेंगे एवं समस्ते आपको जानवे आउ थे आपण मानक शुभेच्छा धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद सर। रग्बी होची ओडिशार स्पंदन तो निहाती आमे रग्बी रो प्रमोशन प्रति बहुत ही कमिटेड। ऑन दीज लाइन्स आई नाउ इनवाइट डॉक्टर विजय यदला IAS डायरेक्टर स्पोर्ट्स to share his perspective. मंचासीन राहुल बोस महोदय जो प्रेसिडेंट रग्बी इंडिया अच्छी श्री प्रियदर्शी मिश्र महोदय ओरफा जो अच्छी ओडिशा रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन रो प्रेसिडेंट मोर दी जन कोलीग जो अच्छी विजय स्वायन और अशोक पंडा दी जन एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज रो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया रे जो आसीथिबा गणमाध्यम रो आसीथिबा समस्ते मीडिया बंधु मानन को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाई सर्वप्रथम हमें औथर वेलकम करूछु। आपण तो सुनि सारी जंती ओ प्रकार ये टूर्नामेंट हबो केबेटू आरंभ हेबो या पूर्वरु मेनली हमर गवर्नमेंट जो अच्छी हमारे मान्यवर मुख्यमंत्री प्लस हमारे मान्यवर मंत्री महोदय जो अच्छी सूर्यवंशी सूरज महोदय से एक्चुअली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रो आसीबार थिला तांकर किछि अन्य एंगेजमेंट पाई से आसी पार ना थिले तो से और हमारा डिपार्टमेंट रो जो सेक्रेटरी से समय समस्ते ये टूर्नामेंट एठी कंडक्ट करबा लागि जेते बेले प्रपोजल आसी थिला गवर्नमेंट तरफरु हमें जेति की सहज हमें देई पारिबा से माने एक्चुअली याको जेति की फाइनेंशियल सपोर्ट हो लॉजिस्टिकल सपोर्ट से माने जो मांगिले तांकोटू अधिका हमें जाई कि दुई थर हो तीन थर हमें अधिका ताको सपोर्ट करबा पई हमें भी आगो को गल्लू तो तेनु एक्चुअली ये मात्र सब जूनियर चैंपियनशिप हो नहीं इटी सब जूनियर चैंपियनशिप सहित गोटे अस्मिता लीग भी गोटे हेबो अस्मिता लीग हमारा ये जनवरी 29-30 से बेलकू हेबो आपरे 15 चैंपियनशिप के गोटे हेबो से एक्चुअली फेब्रुआरी रे हेबार थिला किंतु किछि कारण पाई ताकू गुंचाई देछंती मार्च पर्यंत ताकू गुंचाई जंती तो मार्च रे से भी हेबो ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट को यदि हमें आसिलु से 4 दिन रो टूर्नामेंट होची हमें 16 तारिख रे आरंभ होची 16-17 तारिख रे आरंभ हेबो आपरे 2 दिन रो ब्रेक नेला परे 20 और 21 दिन और थरा बॉयज रो एटी चलीबो इथरे टोटल
पाखापाखि 600 जने प्लेयर माने आसीबे 600 सबु राज्य रु आसुचंती नियरली 24 स्टेट्स रु आसुचंती जेमिति राहुल जी कहिले कि 600 को ताको मैनेज करबा लागि बहुत असुविधा किंतु आपण माने जानि छंती कि और तांको इंफॉर्मेशन पाई भी हमें कहूछु we have managed sir nearly for national junior athletic championship there were more than 2100 players in fact so 2100 players is a pretty big number which we have managed quite successfully so हमें ओडिशा ये भलिया राज्य अच्छी कि हमको ये बहुत ही कॉमन है गला कि हम ये भलिया बड़ा बड़ा टूर्नामेंट हमें करी आसुछु आपने जानी थिबे कि विगत 3-4-5 मास तले 4-5 मास रु हमें एशियन टीटी चैंपियनशिप करलु और भी हमें बैडमिंटन ये होस्ट करलु बैडमिंटन मास्टर्स भी हमें होस्ट करलु एथलेटिक कॉन्टिनेंटल हमें होस्ट करलु तो ये वर्ष हमें नवा वर्ष रे गोटे फेंसिंग चैंपियनशिप भी हेतिला आपण माने समस्त जानि थिबे जेएनएस कटक रे हेतिला ताको एबे सेकंड कंपटीशन ये हेबो बड़ा कंपटीशन याको सहित हॉकी भी अछि हमरा यार भी डिटेलिंग हमरा एडिशनल सेक्रेटरी माने कहिबे मेनली आपण मानको माध्यम रे हम ये जणाइबा पई चाहूछु कि रग्बी गोटे प्रायोरिटी गेम अछि हम राज्य सरकार पई जेति कि हमें सहज करिवार अछि जेति कि हमर सपोर्ट देबार अछि स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पई हो प्लेयर मानकर एथलीट मानकर कोचिंग ट्रेनिंग ऊपर हो ये सब हमें करी आसुछु गोटे हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो अछि रग्बी रे वी आर एस्टैब्लिशिंग वन हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन जाजपुर इट इज a 60 crore worth of a project which we are coming up and shortly I guess it should be inaugurated it should be completed so there are certain timelines which are there and it is a 100-bedded residential facility both for boys and girls hopefully that one will be put to proper use और एटी जो अछि कलिंगा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रे अपन जो मेन गेट जो अछि गेट नंबर 3 रु जदी एंटर करले तार राइट साइड जो पड़िया अछि दैट इज डेजिग्नेटेड रग्बी पड़िया अछि सेतरे पूरा वर्ष पूरा सेठी खेल होतिबो मिनिमम 200 रु 300 प्लेयर माने सेठी की आसंती सब दिन सेठी खेल हुए से माने प्रैक्टिस करंती और हम राज्य सरकार रो अपन जानि थिबे ये रग्बी रे जे भी भाग नहीं थिले से माने जो जीत थिले तांकर गोटे 1 crore 17 lakhs रो ताको फाइनेंशियल कैश अवार्ड्स भी दिया हिची 81 प्लेयर्स मानकर मोर देन 80 प्लेयर मानकर हमें कैश अवार्ड भी देथिलु और जॉब्स जो अछि 39 नियरली 39 प्लेयर माननको हमें एथि राज्य सरकार जॉब भी दैछंती ग्रुप सी रे से माने एबे चाकरी भी करछंती विभिन्न डिपार्टमेंट रे से प्रकार गवर्नमेंट जति के सहायता करि पारिबा ए गेम को नहीं की सबो करूची एक्चुअली राहुल जी जे तबेले प्रथम थर आसितिले गोटे स्टेटमेंट देखिले रग्बी इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेड बट लीस्ट वॉच्ड स्पोर्ट तो से मु एक्चुअली औथर ये कहूची ये प्लेटफॉर्म रे एति पई कहूची हमर टोटल 30 टा जिल्ला रे 16 जिल्ला रे ये रग्बी बहुत प्रोमिनेंटली से माने खेलंती इतरे पार्टिसिपेशन भी बहुत अधिका हुए हमारा जदी नेशनल टीम रो कैप्टन जदी हमारा ओडिशा प्लेयर अछंती से बहुत गर्वर कथा हम पाई हमारा बहुत इंटरनेशनल प्लेयर भी अछंती गुपी माजी सुमित्रा नायक से बलिया बहुत प्लेयर अछंती ताको हमें बहुत प्रोत्साहन भी देई आसुछु तो हमें भाबुछु कि ये 4 दिन रो टूर्नामेंट तापरे जो अस्मिता लीग जो हेबो से मात्र वुमेन पाई गोटे टूर्नामेंट होची से जनवरी एंड रे हेबो तापरे जो 15 टूर्नामेंट हेबो से बहुत अगेन सीनियर टीम रो सीनियर मेंस एंड सीनियर वुमेन पाई गोटे टूर्नामेंट हेबो से मार्च रे हेबो गोटे रग्बी सीजन भलिया हमें याकू धरुछु और हमें ये आशा करिबा हमारा प्लेयर माने ये नेशनल रे सब जूनियर नेशनल रे से भला केली की एबे जो हमें ऑल इंडिया रैंकिंग रे हमें सेकंड पोजीशन रे छु तो हमें आशा करिबा कि हमर टीम भला परफॉर्म करके एथरा फर्स्ट को आसीबा लागे हमें आशा करू छु तो thank you all thank you once again for coming here and participating in this press conference. Thank you so much, sir. Now we open the floor to the media, to our media friends. How many teams are participating? Girls and boys? 24 states. Not states.
states. Girls and boys. मैम ये नेशनल टूर्नामेंट है ना, इंटर स्टेट है ना, I know it. 24 states girls, 24 states. Next question, please. Hello, Raghu sir. India still is salient to rugby as a sport. Even though at the junior level we see tournaments like this taking place. Can rugby become a serious sport in the country? हमारे देश में 760 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 760. उनमें से रग्बी खेला जाता है 322 डिस्ट्रिक्ट में. इस देश के 40% डिस्ट्रिक्ट्स में रग्बी खेला जाता है. तो ये तो छोटा खेल नहीं है, लेकिन हाँ, अनजान किसी को पता नहीं है कि 40% आबादी में इस देश में रग्बी खेला जाता है. ये तो एक बात. दूसरी बात, रग्बी खेला जाता है एशिया में 32 कंट्रीज. उन 32 कंट्रीज में से हमारा रैंकिंग विमेंस में 6th है. जापान, चाइना द टॉप 2. अगर हम टॉप 2 में पहुंचेंगे तो हम ओलंपिक्स पहुंच सकते हैं. ओलंपिक्स में एशिया से अप टू 2 स्पॉट्स मिलते हैं. अभी ओलंपिक्स में किसी टीम ने भारत से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है कुछ 65-70 साल से, सिर्फ हॉकी. तो हम आशा करते हैं कि अगले 7-8 साल में दूसरा टीम जो ओलंपिक्स में शामिल होगा वो रग्बी का होगा. हमारे मेंस टीम और विमेंस टीम दोनों एशियन एलीट सीरीज में टॉप 8 to 10 countries, 8 to 12 bracket में they play. This year they'll be playing in the top elite Asian series. लोग रग्बी के बारे में इतना नहीं जानते हैं, खास करके उड़ीसा, जहां पे अगर it is one of the biggest, most productive sports for Odisha in terms of medals, in terms of national and international recognition. इसलिए नहीं जाना जाता है क्योंकि हम मैस मीडिया पे नहीं है. तो इस साल प्रियदर्शी जी ने जिक्र किया था आरपीएल के बारे में, रग्बी प्रीमियर लीग. पहली बार ओटीटी पे और टेलीविजन पे, स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट, ओटीटी पे, जियो हॉटस्टार, दिस वाज शोन. द 30 बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड केम टू इंडिया एंड दे प्लेड विद द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया लाइक द आईपीएल. एंड वहां पे पहली बार आपको अभी पता चला है कि देश के किस किस कोने में से लोगों ने देखा ओटीटी पे एज वेल एज टेलीविजन पे. और मैं कह सकता हूं कि हमारे 37 स्टेट्स में से ज्यादा पेनिट्रेशन पहले सीजन में ही हमें कुछ 9 या 10 स्टेट्स में मिल गया है. अब से आप देखोगे कि आरपीएल, रग्बी प्रीमियर लीग आज पुरुष के लिए है, कल हम आशा करते हैं पुरुष और महिला के लिए हो. दैट विल गेट ऑन टू मैस मीडिया एंड दैट ईयर आफ्टर ईयर देन चिल्ड्रन, एवरीबॉडी विल होपफुली देन सून बिकम वन ऑफ द टॉप 5 or 6 रिकॉग्नाइजेबल स्पोर्ट्स. अभी तक नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखा जाए इट्स मच बेटर देन द एक्सपोजर दैट द स्पोर्ट इज गॉट. Next question. सर ଆପଣ କହିଲେ କି 16ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳା ଯାଉଛି, ବାକି 14ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇନି, ତାହେଲେ କେମିତି ଯିବ, କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ରଗ୍ବି ସହରରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି. କ'ଣ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? सो ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଟିକେ ଆଇ वुड लाइक टू ऐड. तो मैडम ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ ये बेसिकली गर्ल्स और बॉयज ର टीम्स अलग अलग हुए 24 स्टेट्स ର 21 स्टेट्स प्लस 3टा यूनियन टेरिटरी अछंती. जेहेतु जम्मू काश्मीर एबे यूनियन टेरिटरी अछि, प्लस हमारा चंडीगढ़ भी गोटे यूनियन टेरिटरी अछि. पांडिचेरी हैज seems like they have withdrawn from the competition. So it is 21 plus 3, 576 athletes are there. So nearly 30 plus technical officials and 100 team officials and 576 total participants are there in this one.
and there are equal number of participants both in the boys as well as in the girls team. And coming to your thing, how the sport will become popular, whether it is actually popular, can it actually reach that spot and all. Basically, I am taking the words of my secretary, so he is actually a very good leader here for our sports department. He keeps telling one thing that any sport will be bigger based on the narrative that is built around the sport. And the narrative that has been built around cricket is so good that actually it has left out all the sports behind, and it has leaps and bounds, it is ahead of any other sport. So it is our responsibility, it is our collective effort that what we are trying to do, what Rahul Bose-ji is trying to do. There is no other sport, especially for cricket, you don't need any brand ambassador. And we are very lucky for rugby, should be very, very lucky that it is having such a personality who is actually a player himself and who is a brand ambassador to promote the sport in such a big way. So I think we are very, very thankful for you, sir, to be in such a position and trying to promote the sport like this. And definitely we hope that it will be in the top 5 sports as he has told. आपण जो पचारिचंती कि रग्बी खाली शहर रे खेला हुए रूरल रे इते पेनिट्रेशन नहीं. I seriously contest that narrative of yours because आमे दीजन एठी कि आसीबा पूर्वरु हमें जाई कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर रे पिला मानन रे टेस्टिंग होतिला सेठी कि जाई कि आसीबा समय रे हमें कथा होतिलु और राहुल जी एमिति कहले दिस इज नॉट ए अर्बन स्पोर्ट, दिस इज एक्चुअली ए रूरल स्पोर्ट. रूरल रे इते अधिका खेला जाए ये स्पोर्ट को एमिति तांकर हिस्ट्री अछि को प्रकार तांको आसिकी हमें वर्ल्ड स्कूल गेम्स रे हमारा टीम एक्चुअली ओडिसा रे टीम जीती थिला. तो से सेतरे किए भी अर्बन पिला ना थिले, सब रूरल वाले थिले. आ गोटे कथा आपनको पाई मु कहिबी जनजातीय क्रीड़ा जो जते बेले हला सेतरे 15टा स्टेट जो अछि सेतरे भाग नहीं थिले. जदी 15 स्टेट्स हैव एक्चुअली पार्टिसिपेटेड एंड मोस्टली ट्राइबल. एंड आमर राज्य हमें जानू छु कि केतटा ट्राइबल पेनिट्रेशन अछि, केतटा जिल्ला रे शेड्यूल 5 डिस्ट्रिक्ट्स अछि, केतटा रे साउथ रे भी ट्राइबल अछि, हमारे वेस्टर्न रे भी अछंती, नॉर्थ रे भी अछंती. तो हमें चेष्टा करिबा ये डेफिनेटली रूरल स्पोर्ट अच्छी से कथा मु कहिबी. और हमें जो स्पोर्ट्स प्रायोरिटी रे जो हमें नेलु विजन 2036 पाई हो, विजन 2047 पाई जो हमको विजन डॉक्यूमेंट जो करा है छि सेतरे स्पोर्ट्स विभाग रु हमें इतटा प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं दिलु. और ये पे जो हमें स्पोर्ट्स हॉस्टल को जो रैशनलाइजेशन करिबा या किंबा जो प्रायोरिटी रे हमें नेबा रग्बी को निश्चय हमें प्राधान्यता देबा. हमें ताको जति की हे पारिबो एक्स्ट्रा टूर्नामेंट्स जदी आपण देखिले गोटे मास भीतरु हमें 3टा टूर्नामेंट्स करूछु. और ये 3टा टूर्नामेंट्स रे समस्तों को अवेयरनेस अवगत क्रिएट करिवा, सचेतनता क्रिएट करिवा लागि भी स्पोर्ट्स हॉस्टल पिला मान को समस्तों को आणुछु. एसएमई डिपार्टमेंट को कही कि प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस जो अछंती, यूनिवर्सिटी माने जो अछंती तांको भी हमें चिट्ठी करके जिते अधिक आसी पारिबे व्यूइंग पाए ऑडियंस पाए ताको सो दैट दे विल आल्सो गेट इंस्पायर्ड. एटी इते बड़ा टूर्नामेंट हमें जदी करूछु तो हम पिला माने एटिरु किछि सिखिबार अछि, जानिबार अछि कि को बलिया ये स्पोर्ट अछि. तो हमें आशा करिबा निश्चय ये 14टी प्लस 16 टोटल 30टा जिल्ला रे याको पेनिट्रेशन को प्रकार हबो यार काम करिबा लागि हमें निश्चय चेष्टा करिबा और से प्रयास हमरा 100% रहियो. All matches are knocked out. Take the schedule is ready of the matches. Yeah, so there'll be pools, right? So the question is it knockout? First it's a pool this thing, and then the top 2 teams from each pool go through. Correct. So how many pools? 8 pools. 8 pools में से top 16 को रैंकिंग हो जाएगा, उसके बाद पहले knockouts. Any more questions? If rugby is introduced in schools, it would increase exposure to the sport among students. What are the challenges likely to be faced, and how can the curiosity be developed? बेसिकली हमें गोटे गोटे भूल धारणा रे अच्छु कि ये हमारा स्कूल रे पे खेला जाएगा. इट इज ऑलरेडी देयर इन द स्कूल्स. एंड जस्ट नाउ
there was a VC, just now I attended, that VC was conducted by Ministry of Youth Affairs and Sports, wherein there were two secretaries were conducting this meeting based on a follow-up of the Chief Secretary's conference that was held. One of the main agenda points was, the theme of the topic was beyond classrooms, sports and I think fitness, that was beyond classroom. So that was the theme, sub-theme in which it was held. So there is going to be a physical progress report of how these fitness is going to be ranked, which is going to be done from 2027. And in the curriculum, it is a mandatory curriculum. Right now, sports is not an additional PT subject waliya hebo nahi. Right now, it is not extracurricular. It is part of the curriculum. So sports is no more an extracurricular activity. It is going to be a curricular activity henceforth, as per the guidance of our Honorable PM Sir. And the other thing that you are saying, what I would like to mention here is, based on the observations given, instructions given by our Honorable PM Sir, New Zealand team is going to come here to India. It is going to come to India, and they are going to tour most of the states, and some tournaments are going also to be held. So we hope that there will be good exposure, there will be good awareness creation among everyone, and all the school children will get motivated in trying to participate and be part of work. अगर हम स्कूल में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पीटी लोग हैं सबको तो खेल मालूम नहीं है, वो फिर कैसे खेलेंगे? हमारा बहुत से खेल ऐसे करते हैं टीम स्पोर्ट्स में। हमारे जो कोचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के पास नहीं जाते, दे ट्रेन द ट्रेनर्स। तो हमारा बहुत नेशन वाइड एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हम आपको विस्तार में बता सकते हैं साल ब साल, दैट आवर ट्रेनर्स, कुछ 20 से 40 हमारे ट्रेनर्स होंगे जो पीटी टीचर्स को स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि हम बहुत ज़िले में जाते हैं जहाँ पे इनकम इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उन पीटी टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स के साथ को हम ट्रेनिंग देते हैं, then they spread the message to the children. So this pyramid effect starts with 40, goes to another maybe 200-300 teachers, and then goes down to about 30,000-40,000 children. So the concentration of our training and education program is with the teachers, not with the students. Sir, hypothetical question. Sir, have you set any target for Olympics? Olympics जाएगा, कितने साल में ये सब कुछ टारगेट? जरूर, टारगेट के बिना जिंदगी, टारगेट के बिना सपना सपना ही रहता है। तो हमने तो बहुत पहले कह दिया है कि by 2036, I want it to be 2032, but what I want is not there's a whole team that is working very hard. कि final deadline is 2036 that we should make the Olympics. 2032 में अगर होता है तो होता है, लेकिन 36 हमारी ख्वाहिश है that we should make the Olympics, and for that we are doing everything possible. जैसे मैंने कहा, अभी हमारी महिलाएं का रैंकिंग एशिया में 6ठा है और हमारे पुरुष का रैंकिंग है 12वां। तो in the next, if you're looking at 36, 9 years, you have to move 4 places in the women and 8 places and 10 places in the men. तो that is the target. जैसे लोग कहते हैं ना, अगर आप चांद पे छलांग मारने की इच्छा ना रखो तो फिर आप 6 फुट का दीवार का आप नहीं क्रॉस कर पाओगे। बट ये टारगेट इज अ रियलिस्टिक टारगेट। और जब से मैं प्रेसिडेंट बना था 2021 में, अभी हम 26 में हैं, तो the trajectory is slow but correct. At this trajectory, we should definitely make it in 2036, but this is sport, so you don't know. I cannot be arrogant and say it, but a target है definitely, and that is 36. Sir, what significant difference between rugby and football? Yes. Shape of the ball. That is a significant difference. नहीं, मैं बल्कि ये कहूँगा कि कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है।
एक भी सिमिलैरिटी नहीं है। एक गेम में 7 या 15 जन खेलते हैं, दूसरे गेम में 11। एक गेम में आप पैर के साथ आगे बढ़ते हो, किकिंग करके, हेडिंग के साथ। रग्बी में आप हेडिंग आप अलाउड नहीं है, और पैर के साथ अगर आप किक करते हो तो आप करते हो टू मेक डिस्टेंस, नॉट टू प्ले विद इन ईच अदर। रग्बी इज प्लेड मोस्टली विद द हैंड्स, so it has got very little to do with football. I love football. I think game, जब से मैं छोटा था, वर्ल्ड कप देखते देखते, उसके बाद संतोष ट्रॉफी, all those, I love the sport, and I think that footballers are some of the fittest athletes on the planet. It's a game of beauty, but it is not rugby, and rugby is a game of beauty in another way. There can be two beauties in the world. Sir, I have a compliment for you. Sir, rugby don't need a brand ambassador. You are enough because you are a rugby player, talented. You are, and I have seen your film, Dakshak, in '99. You are a big film star. Yeah. So, Dr. Vijay very kindly said, brand ambassador. Look, I played this game. I've been playing this game since I was 14. I'm 58. I played this game for 44 years. I played for India for 11 years. I played the game at the highest level in this country for 30 years. I have eaten more mud than I have eaten. I've eaten more mud from the ground, from the fields of India than anybody else. So for me, this is my passion. This is my love. And the greatest, I think Priyadarshi ji was saying, जब भी एक टूर्नामेंट होता है, हमारे में क्या होता है कि टूर्नामेंट शुरू होता है 7 बजे सुबह और शाम 7 बजे शाम तक चलते हैं। कुछ 35-40 मैचेस होते हैं, क्योंकि हर गेम सिर्फ 14 मिनट का होता है। और मैं कभी बैठता नहीं हूँ। वो जो स्टेडियम में वो VIP का एक शामियाना लगता है, एक वेलवेट का एक सोफा लगता है, 2-3 कुशन है, मैंने कभी बैठा नहीं वहाँ पे 4 साल में। मैं सिर्फ वॉकिंग करता हूँ, क्योंकि हर फील्ड के चारों ओर एक ट्रैक होता है। आई जस्ट वॉक अराउंड द ट्रैक और मैं देखता हूँ कहीं पे टीम वार्म अप हो रहा है, कहीं पे टीम हार के निकल रही है, दूसरा टीम अभी जीत के निकले हैं, किसी को इंजरी हुआ है, कोई अस्पताल जा रहा है एम्बुलेंस में, एंड आई जस्ट कीप ऑब्जर्विंग कि क्या हो रहा है। और लास्ट टाइम बिहार में हमारा एक टूर्नामेंट हो रहा था और मैंने अपने वॉच पे देखा कि कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया था, 22 किलोमीटर। Just walking, I had walked about 95 times on a 400-meter track, and I had done about 22 kilometers. सबसे सुख मुझे इससे मिलता है, और ताज्जुब भी मुझे होता है कि जो लड़के लड़कियां हैं इस देश के, ज़्यादातर गरीब हैं। आसमान उनके ऊपर है, उनके पैर के नीचे ज़मीन है, उनके हाथ में एक अजीब शेप का बॉल है, और वो इतने खुश होते हैं। This is what makes me incredibly happy, because that ball is a sign of empowerment for these kids. have you any regret about Bollywood and your acting career? Regret? मैं अभी तक मर नहीं गया हूँ, अभी तक हूँ। I've just finished 2 films, दोनों रिलीज होंगे इस साल, 26 में रिलीज होंगे। तो मैंने कभी न्योछावर या कभी बलिदान नहीं किया मेरे करियर को। मेरा करियर चल रहा है। तो पिछले साल बर्लिन रिलीज हुआ है, इस साल में भी एक फिल्म रिलीज होगी जो मैं बहुत, I'm very proud of that film. My career is going fine. I have no problem with that. I don't need to get to Everest. I'm fine. I'll stay at base camp and I'll keep doing my work. Thank you. That's it for today. We close the floor. A quick statistic: over 2,000 schools in this country are playing rugby. Except वो hi-fi schools नहीं है, इसलिए आप सुने नहीं। 2,000 schools playing rugby. की